بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل چوک میں پی ایچ ایف ایم سی پروگرام کے ملازمین کا احتجاج دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ ایم پی اے میجر ریٹائرڈ محمد غلام سرور اظہار یکجہتی کے لیے فیصل چوک میں پی ایف ایم سی پروگرام کے ملازمین کے دھرنے میں پہنچے۔ ایم پی اے میجر ریٹائرڈ محمد غلام سرور نے مظاہرین کے مطالبات منظور ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مہر علی اکبر سے۔ جی مہر علی اکبر بتائیے گا۔ جی اس وقت میں مال روڈ فیصل چوک میں موجود ہوں، جہاں پر پنجاب بھر کے 14 اضلاع سے آئے پی ایچ ایف ایم سی کے جو ملازمین ہیں ان کا دھرنا 10ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ملازمین موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا یہاں پر جو پی ایچ ایف ایم سی کے ملازمین ہیں جو 10ویں روز بھی یہاں پر دھرنے پہ موجود ہیں، تو ان کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ 10واں روز، آج ہمارے امتحان کا 10واں روز شروع ہو چکا ہے، لیکن انتظامیہ کی بے حسی یہ ہے کہ 9 دن گزرنے کے باوجود ہمارا ایک مطالبہ ہے ریگولر ہونا، اس پہ کسی حکومتی ذمہ دار نے جو ہے ہماری طرف دھیان نہیں دیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، مظاہرین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کے نمائندگان نے ہمیں مطالبات منظور ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب اور بھی مظاہرین موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، اگر تو جو مظاہرین یہاں پر 10ویں روز بھی موجود ہیں، اگر ان کے مطالبات سنے نہیں جاتے، تسلیم نہیں کیے جاتے، تو مظاہرین کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ پاکستان کے تمام صوبوں کے ملازمین اپ گریڈ بھی ہو گئے، ریگولر بھی ہو گئے، یہ بیچارے رہ گئے ہیں جو مختلف جگہوں پہ دیہی علاقوں میں اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ ہم نے 10ویں روز کے بعد اب ان کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے مطالبات کل تک نہ مانے تو پھر ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے اور اسمبلی میں ایم پیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات کی منظوری تک ہم یہاں پر موجود رہیں گے۔ اگر ہمارے مطالبات کو کل تک سنا نہیں جاتا، ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو ہم پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ بھی کریں گے اور کسی بھی ایم پی اے کو پنجاب اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جی ٹھیک ہے مہر علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب ٹرینیں وقت کے ٹریک پر نہ آ سکیں۔ کراچی سے لاہور پہنچنے والی ٹرین 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ لاہور سے پشاور جانے والی ٹرین بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار، مسافر ریلوے اسٹیشن پر خوار ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹرینوں کا شیڈول معمول پر نہیں آ سکا، تاخیر کی وجہ کیا ہے جان لیتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں، جہاں ون اپ ٹرین کی بات کریں تو وہ کراچی سے لاہور اور پھر پشاور جاتی ہے، جبکہ اپنے ٹائم پر اپنے کراچی کے اسٹیشن سے نکلنے کے بعد انہیں شیڈول کے مطابق یہاں 7:30 سے 8 بجے تک پہنچنا چاہیے، مگر وہ رات 12 بجے سے 1 بجے تک کے درمیان یہاں پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے 4 گھنٹے لیٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو مسافر ہیں وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور مسافروں میں شدید غم و غصہ دکھائی دے رہا ہے۔ جی طلحہ اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کو لاکھوں روپے جرمانہ ہوگا۔ ہائی کورٹ نے جرمانہ 50,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے انسداد اسموگ سے متعلق کیس کے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ زندہ رہنے کے لیے اسموگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستوں کی سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ پیش ہوئے، ڈی جی پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی فیصل فاروقی اور دیگر پیش ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسموگ کے تدارک کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی رپورٹ پیش کی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ 5 روز میں فصلوں کی باقیات جلانے کے 153 واقعات ہوئے۔ فاضل جج نے کہا جو کام حکومت کو کرنا چاہیے وہ درخواست گزاروں کے ذریعے عدالت کر رہی ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف مقدمات کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ جو ڈپٹی کمشنر فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے علاقوں میں کسانوں کو ارزاں نرخوں پر مشینری فراہم کرنے کی ہدایات کی تاکہ فصلوں کو آگ لگانے کی نوبت نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سوابدیدی فنڈ میں مزید 17 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی سفارشات پر سالانہ ترقیاتی بجٹ میں مجموعی طور پر 27 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔
पंजाब के सालाना तरक्याती बजट में मखसूस मंसूबों के लिए ब्लॉक एलोकेशन के नाम से 10 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया था, जिसमें अब वजीर आला पंजाब की स्वाबदीदी फंड के लिए मजीद 17 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से वजीर आला ने बजट में मजीद 17 अरब रुपए मखसूस मंसूबों के ब्लॉक में मुख्तस करने की इजाजत दे दी है। फंड्स मखसूस मंसूबों पर वजीर आला की इजाजत से खर्च किए जाएंगे। इन फंड्स का ज्यादातर इस्तेमाल वजीर आला की मंजूरी से अरकान असम्बली के हलकों के लिए किया जाता है। ज़राए का कहना है कि ईवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर सालाना बजट में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो सिर्फ गुजरात पर मजीद 14 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर, हजम 54 अरब हो गया। रोड सेक्टर की स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपने आबाई जिला गुजरात के लिए मजीद 14 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक गुजरात के लिए मंजूर शुदा सप्लीमेंट्री ग्रांट का हजम 54 अरब रुपए तक पहुँच गया है। इससे कबल 40 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने अपने जिला के लिए सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब अपने साहबजादे मोनस इलाही के हल्के में भी 30 अरब रुपए की मंजूरी दे चुके हैं। शाहकाम चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह किया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब में गंदम की खरीदारी के मामले पर विफाक सियासत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शाहकाम चौक फ्लाईओवर का बाकायदा इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने शाहकाम फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर 3 अरब 91 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2 तरफा 3 रोया फ्लाईओवर की लंबाई 606 मीटर है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने शाहकाम फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में नून लीग पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून कब्जा ग्रुप है, ज़िमनी इंतखाबात ने उनकी चूल्हें हिला दी हैं, गंदम के मामले पर आवाम से दुश्मनी कर रही है। हमारी और आपकी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए यहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिज़ल्ट आया है वो सबके सामने है और इस रिज़ल्ट ने वो कहते हैं इनकी चूल्हें हिला के रख दी हैं, तो इनकी चूल्हें हिल गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि निजी सोसाइटीज़ को कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दी गई। जो सोसाइटीज़ अपनी सीवरेज लाइंस और सड़कें मुकम्मल नहीं करेंगी उन्हें नोटिस देने जा रहे हैं। यहाँ अक्सर ये शिकायत है सोसाइटी वालों से कि सीवरेज जो है वो नहीं ये डालते, बस जल्दी से होता है कि एडवर्टाइज़ करें और एडवर्टाइज में पता नहीं क्या क्या वो झील दिखा रहे होते हैं, नहरें दिखा रहे, वो नहरें तो इस गंदगी हैं सीवरेज की। अब मैं सबको नोटिस भिजवा रहा हूँ आज की मीटिंग के हवाले से कि जब तक वो नहीं करेंगे हम उनको कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि शरीफ खानदान ने लूट मार की। दुनिया में उनकी करप्शन के किस्सों पर लेक्चर दिए जा रहे हैं। इन्होंने इन शरीफों ने मेरे मुल्क का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर करप्शन के हवाले से इनका नाम पहचाना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जब करप्शन की दास्तान निकलती है तो लेक्चर इनके नाम से दिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया, ऊपर से लेकर नीचे तक, इनका हो, जरदारी का हो, मरियम का हो, शहबाज का हो, हमजा का हो, सलमान का हो, सबकी बातें की जाती हैं। शाहकाम चौक फ्लाईओवर के इफ्तिताह से रोजाना 1,20,000 गाड़ियों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मैसर आएगी। कैमरा टीम के हमरा फसीउल्लाह, सिटी 42। महंगाई का सुनामी आवाम को मुआशी तौर पर तबाह करने लगा। मुख्तलिफ कंपनियों ने डायपर्स की कीमतों में 150 से 300 रुपए तक इजाफा कर दिया। शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि बच्चे कैसे पाले, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। माशी गिरदाब में फंसी महंगाई के तूफान में गोते खाती आवाम को एक और झटका लग गया। मुख्तलिफ कंपनियों के डायपर्स की कीमतें भी बढ़ गयीं। मीडियम साइज के डायपर के पैकेट की कीमत 1400 रुपए तक पहुंच गई। आए दिन जनाब आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, उस वजह से हमारा और कस्टमर का भी आए दिन क्लैश होता रहता है कि जी ये प्राइसेस। अब हम तो चूँकि जब जिस तरह हमें कंपनियां देंगी हम उस हिसाब से आगे उसको सेल करेंगे। डायपर के बड़े पैकेट की कीमत 1700 से बढ़कर 1920 और 2000 रुपए तक पहुंच गई। शहरी डायपर महंगे होने पर परेशान हैं। कहते हैं महंगाई के तूफान में बच्चों की परवरिश कैसे करें, कैसे पढ़ाएं और क्या खिलाएं। सभी कंपनियों में रेट बढ़ाए हैं और केयर बेबी, वीगो, उसके बाद बेस्ट वालों ने, उसके बाद कैन बेबी और मॉलफिक्स और सिंपल बेबी, नाना ने भी बढ़ा दिए हुए हैं। तकरीबन सभी ने 150 से लेकर 250 या 350 तक रेट बढ़ाए हैं। हमें तो मजबूरन जैसे पैकेट लेना, पैकेट ना लेंगे तो चलो खुले लेके गुजारा करेंगे, थोड़े थोड़े लेके गुजारा करेंगे।
शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा है कि हुकूमत उनकी फरियाद सुने, कंपनियों को बेजा कीमतें बढ़ाने से रोके। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डॉलर की कदर में तेजी का रुझान जारी। करंसी मार्केट में डॉलर की तलब मुसलसल बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 82 पैसे जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये इजाफा हो गया। मंगल को ओपन मार्केट में डॉलर की तलब में गैर मामूली इजाफा देखा गया, जिससे ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया और ओपन मार्केट में डॉलर रेट 226 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया है। जबकि इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 82 पैसे का इजाफा हुआ और इंटरबैंक में डॉलर रेट 219 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की तलब में चंद रोज से इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कॉलेज की सैकड़ों खवातीन असातिज़ा को तरक्कियां मिलेंगी। डायरेक्टर कॉलेजेस ने कॉलेज सरबराहान से प्रमोशन केसेस मांग लिए। उधर वज़ीर आला पंजाब ने भी सरकारी कॉलेजेस में 3800 आर्जी असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी। खवातीन कॉलेज असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, ग्रेड 18 से 19 में तरक्की होगी। डायरेक्टर कॉलेजेस ने कॉलेज सरबराहान से 25 अक्टूबर तक प्रमोशन केसेस मांग लिए। 600 के करीब असातिज़ा को तरक्की दी जाएगी। डायरेक्टर कॉलेजेस ने असातिज़ा के केसेस फौरी तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए। कॉलेज सरबराहान को केसेस भिजवाने की हिदायत कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी। 3800 असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। माहाना 45,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। महकमा हायर एजुकेशन ने अगस्त में आर्जी असातिज़ा रखने का ऐलान किया था। भर्ती की समरी 2 माह से इल्तवा का शिकार थी। महकमा खजाना की जानिब से बजट मंजूरी के बाद भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली लाहौर में पहले ट्रांसजेंडर स्कूल के क़याम का मंसूबा ठप। ऐलान के तहत 1 अक्टूबर को स्कूल का इफ्तिताह होना था। लाहौर में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल बनाने के हवाले से इंतजामात ही मुकम्मल न किए जा सके। बरकत मार्केट के सरकारी स्कूल को ट्रांसजेंडर स्कूल में तब्दील किया जाना है। 1 साल कबल मंसूबे का ऐलान किया गया था। स्कूल को मल्टी क्लासेस बनाने का ऐलान किया गया। इब्तदाई तौर पर 210 ट्रांसजेंडर्स को स्कूल में रजिस्टर्ड किया जाना है। ताहम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन की अदम दिलचस्पी के बाइस मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। पुराने सिंगल और 3 फेज मीटर्स की बड़े पैमाने पर तब्दीली का फैसला। लेस्को को आइंदा साल जून तक लाखों नॉन स्टैटिक मीटर्स तब्दील करने के अहकामात मिल गए। लेस्को ने वजारत पावर डिवीजन की जानिब से अहकामात मिलने पर पुराने सिंगल और 3 फेज मीटर्स तब्दील करने की तैयारी कर ली। वजारत पावर डिवीजन के अहकामात की रोशनी में मीटर्स को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेस्को को आइंदा साल जून तक 12,60,000 नॉन स्टेक मीटर्स को स्टेक मीटर से तब्दील करने के अहकामात जारी किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी के नॉर्दर्न सर्कल में 2,31,000 मीटर्स को तब्दील किया जाएगा, जबकि सेंट्रल सर्कल में 1,49,000 और ईस्टर्न सर्कल में 2,40,000 मीटर्स तब्दील होंगे। इसी तरह साउथ सर्कल में 1,55,000 नॉन स्टेक मीटर्स को भी तब्दील किया जाएगा। LDA शोबा टाउन प्लानिंग में आवे का आवा ही बिगड़ गया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान ट्रांसफर पोस्टिंग में एक दूसरे की टांगें खींचने लगे। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान को मनपसंद सीटों पर तैनात किया जाने लगा। गैर कानूनी काम ना करने पर एक अफसर को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि दूसरे का इलाका छीन लिया गया। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शलाइजेशन में मुलव्वस LDA के अफसरान मनपसंद जोन में जाने लगे हैं, जबकि गैर कानूनी काम न करने पर डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग गुलबर्ग अतीक मुगल से इलाका वापस लेकर गार्डन टाउन तक महदूद कर दिया गया है और असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज इकराम को गुलबर्ग से तब्दील करके मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग में भिजवा दिया गया है। ईमानदारी से काम करने वाली खातून अफसर को जोन 4 से हटा दिया गया है। हाल ही में जूनियर अफसर को डायरेक्टर बनाने के बाद पुरकशिश जोन 4 में तैनात किया गया है। जराये के मुताबिक अली अब्बास जूनियर और सूबाई वजीर की तगड़ी सिफारिश पर प्रमोट हुआ। जोन 4 की डायरेक्टर सिद्रा तबस्सुम ने डिप्टी डायरेक्टर हमाद और असिस्टेंट डायरेक्टर उमर मजीद के खिलाफ शिकायत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमाद अली, उमर मजीद जोहर टाउन और प्राइवेट स्कीम में दर्जनों गैर कानूनी इमारतों की तमीरात में मुलव्वस हैं। डिप्टी डायरेक्टर रजा अली जोन 1 और अमार यासर को मनपसंद जोन 1 में असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर इकरा हुसैन को भी जोन 1 में तैनात कर दिया गया है। बावसूख सराय के मुताबिक अफसरान को CTP ऑफिस में बुलाकर गैर कानूनी बिल्डिंग्स और नाजायज कामों के लिए दबाव डालना मामूल बन गया है। अफसरान को महंगे तहाइफ और नजरानों के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। शहरियों से अराजी के इंतकालात की मद में लाखों बटोरने वाली पटवारियों और तहसीलदारों की सरकारी खजाने को कई साल से नो लिफ्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इंतकालात फीसों की रिकवरी अहदाफ पूरे ना होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को पटवार खानों की ऑडिट रिपोर्ट के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी मरासला भेज दिया गया है।
मेंबर टेक्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑडिट रिपोर्ट के साथ तहफ्फुज़ात पर मबनी मरासला एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू को अरसाल कर दिया। मरासले के मतन के मुताबिक पटवार खानों का ऑडिट कराने पर एराजी इंतकालात की फीसों के अहदाफ में बेकायदगियाँ पाई गयी। कई सालों से इंतकालात की मद में फीसों को खजाने में जमा ही नहीं कराया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इंस्पेक्शन टीम मुस्तकिल बुनियादों पर पटवार खानों का ऑडिट कर रही है। पटवारी और तहसीलदार ज़ेरे इल्तवा फीसों की अदायगी को कभी खातिर में नहीं लाए। इंतकालात की फीसों की अदायगी फौरी तौर पर खजाने में जमा कराई जाए। सेक्रेटरी एक्साइज और डीडी एक्साइज की अदम तवज्जुही रायती परेड के दौरान पहली मरतबा रिकवरी गुज़श्ता साल की निस्बत मनफी पोजीशन पर पहुँच गई। रवा माली साल के पहले 3 माह के दौरान मोटर और प्रॉपर्टी टैक्स समेत दीगर की मद में 1 अरब गुज़श्ता साल की निस्बत कम वसूली हुई है। एक्साइज ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 15 अरब जबकि रवा साल 14 अरब का टैक्स वसूल किया गया। मोटर टैक्सेस की मद में गुज़श्ता माली साल 3 अरब 10 करोड़ रुपए वसूल हुए। रवा माली साल सिर्फ 2 अरब 70 करोड़ के टैक्सेस इकट्ठे हुए। प्रॉपर्टी टैक्स गुज़श्ता साल 9 अरब जबकि रवा साल 8 अरब 80 करोड़ से ज़ायद इकट्ठा किया गया। अफसरान रिकवरी पर तवज्जो देने के बजाय दीगर मामलात पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से 15 दिन के दौरान 6 डायरेक्टर्स के तबादले हुए। डीजी एक्साइज आसिफ तुफैल की जानिब से 20 दिनों में 35 से ज़ायद ETOs जबकि 20 से इंस्पेक्टरों के तबादले हुए। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल इस रिपोर्ट। रियासत मुखालिफ बयान का केस नामजद वफाकी वजीर के वकील को दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी दरख्वास्त के बगैर जावेद लतीफ की आइंदा समाअत पर पेशी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर फ्रीकैन के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर दिया। नैब की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी का मामला अदालत आलिया ने वफाकी वजीर दाखिला की दरख्वास्त पर नैब से इंक्वायरी के मुतालिक 7 नवंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्म इम्तनाई के बावजूद सब्जाजार में रिहायशी प्लाट्स की नीलामी कैसे हो रही है? हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर DG LDA से जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने दरख्वास्त गुजार चौधरी अब्दुल कलीम की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब आरिफ भिंडर कत्ल केस में 3 इश्तिहारी मुल्जिमान ने 16 साल बाद अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 29 अक्टूबर तक थाना मजन पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। बेटी की शादी पर नाक़िस इंतजाम करने पर केटरिंग कंपनी के खिलाफ शहरी सारिफ अदालत पहुँच गया। अदालत ने केटरिंग मालिक को एडवांस रकम वापस और 25,000 हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। गुलबर्ग के रिहायशी मोहम्मद नईम ने उमर केटरिंग कलमा चौक के खिलाफ 5,20,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। पंजाब असम्बली ने साबिक वज़ीर आला के लिए इमरात में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आला को अब सरकारी गाड़ी, मुनासिब सिक्योरिटी और स्टाफ मिलेगा। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी और कॉपियां फ्राहम न करने पर एहतजाज किया। पंजाब असम्बली ने उर्दू ज़बान बिल 2022 भी मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 36 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ, जिस पर अपोजिशन अरकान असम्बली की जानिब से ऐवान में तनकीद की गई और इजलास को वक्त पर शुरू करने का मुतालबा किया गया। डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी की ज़ेर सदारत में इजलास में MPA मुसर्रत जमशेद चीमा का पेश करदा साबिक वज़ीर आला के लिए मरात में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक साबिक वज़ीर आला को अब सरकारी गाड़ी, मुनासिब सिक्योरिटी और ज़रूरी स्टाफ फ्राहम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज के दौर में कानून में तरमीम करके ये मराहत खत्म कर दी थी। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी और बिल की कापियां फ्राहम न करने पर एहतजाज और जुज़वी वॉकआउट किया। अपोजिशन का कहना था कि हमें कुछ मालूम नहीं कि हुकूमत ने क्या बिल मंजूर करवाया है। ताहम अपोजिशन अरकान ने दावा किया कि वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी हुकूमत ने तरदीद कर दी। पंजाब असम्बली ने उर्दू ज़बान के हवाले से भी बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत रोमन अंग्रेजी लिखने पर पाबंदी आयद करके उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब असम्बली में महकमा मवासलात के मुताबिक सवालात पर सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही ने जवाबात दिए। इजलास की कार्रवाई आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई। फसीउल्लाह, सिटी 42। महकमा तालीम में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिश्वत का कल्चर ख़त्म। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि तकर्रुर तबादलों का सारा निज़ाम ऑनलाइन कर दिया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में बोले, नून लीगी हुकूमत ने 4 माह में तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। स्टेक होल्डर की मशावरत से निजी स्कूल एक्ट को अपडेट किया गया। हर रोज पीछे जा रहे हैं और जितना नुकसान आप लोगों को हुआ पिछले 4 महीने के अंदर किसी को भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। जितना बिजनेस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है पिछले 4 महीने के अंदर, टेक्सटाइल, मेरे सारे क्लास फेलोज हैं टेक्सटाइल वाले, बंद करके बैठ गए। हम सब ने रिप्लेस होना है और उस रिप्लेसमेंट को हम तैयार नहीं कर रहे।
and this will be one of the key things کہ گھر بیٹھا ہے وہ کر سکتا ہے, صبح نوکری کر رہا ہے شام کو پڑھ سکتا ہے, شام کو نوکری کر رہا ہے آدھی رات کو اٹھ کے پڑھ سکتا ہے. مراد راز نے پنجاب میں 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہونے کے اعداد و شمار کو بھی غلط قرار دے دیا. سو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچر بھی بہتر ہوگا, ان کے بچے بھی ان اسکولوں میں آئیں گے. give us some time, چیزوں کو ذرا بہتر کرنے دیں. ایس این سی آ گیا ہے, باقی چیزیں ہیں, آن لائن ٹریننگز آئی ہیں, ٹریننگز بہتر ہو رہی ہیں, نئے لوگ ہم ہائر کریں جو کہ بہتر لاٹ ہے. یہ پرانی لاٹ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ نئی لاٹ کو بھی خراب کرتی ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں یار اتنے یہ پہلے کے بیٹھے میں یہ کچھ نہیں کرے, ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. سو اس لیے آپ دیکھنا کہ this will come, this will change. تقریب میں صدر لاہور چیمبر, سینئر نائب صدر ظفر محمود, ایگزیکٹو کمیٹی ممبران مجاہد مقصود بٹ اور چودھری خادم حسین سمیت دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. کارفور پاکستان کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر پیکیجز مال میں سنسلک کے اشتراک سے کسٹمرز پر انعامات کی برسات. سنسلک پروڈکٹس کی خریداری پر قرآن اندازی کے ذریعے ترکی کے 2 ٹکٹ تقسیم کیے گئے. کارفور پاکستان کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر سنسلک کے اشتراک سے سنسلک پروڈکشن کی خریداری کرنے پر کسٹمرز میں ترکی کے 2 ٹکٹ تقسیم کیے گئے. کارفور پاکستان پیکیجز مال میں جی ایم سٹور محمد امین اور نمائندہ یونیلیور معز حجازی نے قرآن اندازی کے ذریعے خاتون ہما ذیشان کو ترکی کے 2 ٹکٹس دیے. لکی ڈرا جیتنے والی خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں ترکی کے ٹکٹ جیتنے کی بہت خوشی ہے اور وہ یہ موقع فراہم کرنے پر کارفور اور سنسلک کی شکر گزار ہیں. جب انہوں نے کال کی تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایسے کوئی مطلب ہوتی ہے, لیکن بڑا اچھا لگا. پھر ان کی کال آئی کہ آپ آ جائیں اور اس کے بعد آپ کا گفٹ ریسیو کر لیں, تو ہمارا ٹرکی کا ٹرپ نکلا ہے اینڈ وی آر ویری ہیپی. ہمارے 2 ٹکٹس نکلے ہیں. جی ایم سٹور محمد امین کا کہنا تھا کارفور پاکستان کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر 26 اکتوبر تک انعامات کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا. کارفور پاکستان اپنی 13ویں سالگرہ منا رہا ہے اور اس 13ویں سالگرہ پہ ہم نے لاکھوں روپے کے جو پرائز کسٹمر کو جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور یہ پرائزز ہم دے رہے ہیں لکی ڈرا میں. تو ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یونیلیور کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ سنسلک کی شاپنگ پہ 2 جو ہے ٹرکی کے ٹکٹ بھی جو ہے لکی ڈرا کے ذریعے کسٹمر کو ہینڈ اوور کیے ہیں. کارفور پاکستان کی قرآن اندازی کے ذریعے شہری 26 اکتوبر تک گاڑیاں, بائکس اور LED ٹی وی جیت سکتے ہیں. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر ڈار, سٹی 42. یونیک فرنیچر گیلری کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے عہدیداروں, اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام اور گلہائے عقیدت پیش کیے گئے. سرپرست یونیک فرنیچر گیلری سعدیہ خرم کی سربراہی میں ماڈل ٹاؤن میں محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی گئی. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی. عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے گئے. سرپرست یونیک فرنیچر گیلری سعدیہ خرم کا کہنا تھا کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ اگر میں فرنیچر کی آج شو روم بنایا ہوا ہے تو پردے میں رہ کے, اور میں اپنی بچیوں کو, اپنی خواتین کو یہی میسیج دوں گی کہ پردے میں رہتے ہوئے بھی ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ نام آ جاتا ہے وہاں پہ اتنی تعظیم ہے کہ ہم اس کے آگے کوئی لفظ نہیں بول سکتے. محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی پروفیسرز اور طالبات نے بھی ہدیہ نعت پیش کیا. درود و سلام کی صداؤں سے فضا معطر ہو گئی. لاہور کالج فار ویمن انٹرمیڈیٹ سیکشن پروفیسر راحت اجمل, معروف شاعرہ سائمہ کامران, پرنسپل گورنمنٹ کالج وحدت روڈ پروفیسر فرام علی سمیت مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. محفل کے اختتام پر سعدیہ خرم کی جانب سے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے عہدیداروں کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, سٹی 42. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں لیوپس پر بین الاقوامی سیمینار اور ریسرچ کلینک کا افتتاح کر دیا گیا. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں لیوپس کا تعین کرنے کے ابتدائی اقدامات اور ریسرچ کلینک کے آغاز کا سیمینار کا انعقاد کیا گیا. پریزیڈنٹ ایویومنائی ایسوسی ایشن فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر منیرہ احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے پریزیڈنٹ ایلومنائی ایسوسی ایشن ایف جوگ ڈاکٹر منیرہ احمد کا استقبال کیا. پیڈیاٹرکس ڈرمیٹولوجسٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ امریکہ ڈاکٹر سرفراز حسنی, سینئر ریمٹالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر نہت میر احمد, ریمٹالوجسٹ پروفیسر محمد احمد سعید اور پروفیسر ڈاکٹر سمائر فرحان راجہ اور کنسلٹنٹ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر بلال عظیم بٹ نے بطور ماہرین شرکت کی.
रायमंड रोड में अनारकली हॉल में सऊदी अरब की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत खालिद इंसारी की जानिब से दुबई से आए वफ्द के एजाज़ में अशाया दिया गया। खालिद इंसारी के इशाये में शहजाद अहमद यूएई की कंपनी इरादा के सीनियर सेल्स मैनेजर मोहम्मद राबलसी, ईगल हिल्स के सीनियर सेल्स मैनेजर ईगल हिल्स नसरीन, जबकि सेल्स मैनेजर एडजियन नालोन, होम स्वीट होम के प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मलाजुल कासिम, CEO HSH होली, डी वसाम, ईसा जरूज, हसन मसरबी समेत दीगर ने शिरकत की। दुबई से आने वाली कारोबारी शख्सियात ने लाहौर के खानों की खूब तारीफ की। पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट लीग के प्ले ऑफ मरहले का पहला मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख किया। बच्चों और बड़ों के साथ फैमिलीज भी मैच देखने आए। कज़ाफी स्टेडियम में खेली जा रही पाकिस्तानी जूनियर क्रिकेट लीग इख्तिताम की जानिब गामजन है। जैसे जैसे इवेंट इख्तिताम के करीब आ रहा है, शायकीन की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चे और फैमिलीज मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान जूनियर लीग के मैचेस देखने के लिए कज़ाफी स्टेडियम में एंट्री फ्री है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पंजाब गेम्स में हिस्सा लेने के लिए लाहौर डिवीजन रेसलिंग टीम के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। 50 शॉर्टलिस्ट रेसलर्स ने हिस्सा लिया। ट्रायल्स के बाद 11 रुकनी रेसलिंग टीम का इंतखाब किया जाएगा। मुस्लिम टाउन रेसलिंग जिम्नेजियम में होने वाले ट्रायल्स में लाहौर डिवीजन के अजला लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब और शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले 50 शॉर्टलिस्ट रेसलर्स ने हिस्सा लिया। 57 किलोग्राम से हैवी वेट कैटेगरी तक के रेसलर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान और सेक्रेटरी मुर्तजा पहलवान ने ट्रायल्स की निगरानी की। कोच पाकिस्तान रेसलिंग टीम फरीद अली ने मुकाबलों में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को जांचा। लाहौर डिवीजन जो कि मड रेसलिंग में बड़ा अच्छा एक नाम है, बड़े बड़े नाम इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। मैट रेसलिंग में कदरे पीछे है, लेकिन रिसेंटली जैसे शरीफ ताहा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लिया है, आल्सो फ्रॉम लाहौर। और बहुत से पहले भी जो रेसलर हैं वो लाहौर से, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है मैट पे, और ओलंपिक स्टाइल मैट का है, और स्पेशली बच्चों को इस पर मेहनत करनी चाहिए। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन और सेक्रेटरी का कहना था कि बड़ी तादाद में नौजवानों का मैट रेसलिंग के ट्रायल्स देना खुश आइंद है। लाहौर डिवीजन ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਜਾਣਗੇ, 골ਡ ਮੈਡਲ लेंगे, पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे। 11 बच्चे ट्रायल में वो फर्स्ट आएंगे 50 में से, उनका फिर हम पंजाब लेवल पे ना 24 तारीख को पंजाब लेवल में उनके मुकाबले होंगे। ट्रायल्स के बाद 11 रुकनी रेसलिंग टीम का इंतखाब किया जाएगा। मुंतखब टीम का कैंप रेसलिंग हॉल में ही लगाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर में कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस के ऑडिशंस हुए। 100 से ज़्यादा बच्चों ने सुरीली आवाज़ों का जादू जगाया। अलहमरा आर्ट सेंटर के हॉल 2 में 100 से ज़ायद बच्चों ने गायकी के ऑडिशंस दिए। चेयरपर्सन डॉक्टर गजाला इरफान समेत दीगर जज जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। बच्चों ने क्लासिकल, नीम क्लासिकल मौसीकी समेत गीत और गज़लें भी सुनाई। कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस 24 से 19 अक्टूबर तक अलहमरा में होगी। पहले रोज ऑडिशन देने वाले बच्चे भी परफॉर्म करेंगे। मौसीकी कॉन्फ्रेंस में नामवर मौसीकी के घराने भी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। बच्चों की हौसला अफजाई भी की जाएगी। कैमरामैन अली नुमान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।